नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। उत्तर बंगाल में कोरोना के वर्तमान हालातों पर स्पेशल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर सुशांत रॉय ने जताई चिंता। जटिल बीमारी से ग्रसित रोगी को कोरोना से अधिक खतरा, सही आइसोलेशन बेहद जरूरी। कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार की ओर से उत्तर बंगाल में नियुक्त किए गए स्पेशल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर सुशांत रॉय ने उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में कोरोना के वर्तमान हालातों पर चिंता जताई है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि बुखार, सर्दी, खांसी की शिकायत लेकर जो कोरोना मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं वहां जल्द स्वस्थ होकर घर लौट जाते हैं, जबकि डायबिटीज समेत अन्य विभिन्न प्रकार की जटिल बीमारियों के साथ कोरोना के लक्षण लेकर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे मरीजों की हालत कोरोना संक्रमण के बाद और जटिल हो जाती है। कोरोना के इस भयावह के बारे में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जिन परिवारों में डायबिटीज समेत अन्य जटिल बीमारी के बुजुर्ग मरीज हैं, उनके लिए उचित ढंग से आइसोलेशन अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को अच्छे क्वालिटी के मास्क पहनने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मास्क को गले में लटका कर रखने वाले लोग नहीं समझ रहे हैं कि वह दूसरों के लिए भयानक समस्या पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या पूजा के आनंद को भी ग्रास कर सकती है। আমি জলপাইগুড়ি জেলাতেই এটাকে আমরা স্টাডি করছি, কারণ এটা সব জায়গায় পাওয়া যাবে না। আমরা অনেকভাবে চেষ্টা করে এই ভ্যালুটাকে আমরা জয় করতে পেরেছি। যদি এটাকে আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি যে সিটি ভ্যালু একটা ফ্যাক্টর, তাহলে এটা হয়তো ডিপার্টমেন্ট যদি এটাকে নেয় তাহলে হয়তো আগামী দিনেতে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এটাকে দেখা হবে। মাস্ক সবাইকে পরতে হবে, বারবার বলছি। ওই মাস্কটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন, মাছটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে মাছের গন্ধ শুকছেন, প্লিজ এটা করবেন না। কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর দিন আসছে, কিন্তু পুজো কিন্তু পণ্ড হয়ে যাবে প্রত্যেকে। এটা হবে না, মানে একের পর এক যা দেখতে পাচ্ছি খুব ভয়ঙ্কর দিকে যাচ্ছে। এটা আমরা আছি, আমাদের হাসপাতাল রেডি, আমাদের চিকিৎসক রেডি, আমাদের লজিস্টিক রেডি, আমাদের নার্সিং স্টাফ রেডি, সব কিছু রেডি আছে, কিন্তু ভুগতে তো হবে আপনাকে। সেই জায়গাটায় মাথায় রাখুন, মাস্ক পরুন, মাস্ক ভালো মাস্ক পরুন, সবসময় মাস্ক পরুন, এটা কিন্তু মাথায় রাখুন। আরেকটা জিনিস, মধ্যে কিছু কিছু কেস দেখা যাচ্ছে যে মাইল্ড সিমটমস নিয়ে আসছে, জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে ভালো বাড়ি চলে যাচ্ছে। কিন্তু যাদের কোমরবিডিটি আছে, যাদের যেমন ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এগুলো সঙ্গে আছে, তারা কিন্তু খুব বাজে জায়গায় চলে যাচ্ছে। সেই জায়গাটার জন্য বলছি যে পার্টিকুলারলি বাড়িতে তো বয়স্ক লোকরা আছেন, সেই জায়গাটাকে মাথায় রাখতে হবে। আইসোলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনারা কেউ কিন্তু সেই স্বাভাবিক উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। যে হারে বাড়ছে, যে হারে স্প্রেডিং ক্যাপাসিটি, ভাইরাল লোড যেভাবে বাড়ছে মানুষের মধ্যে, তাতে কিন্তু ভয়ঙ্কর জায়গায় যদি এক্ষুনি যদি আমরা আইসোলেট করতে না পারি, তাহলে কিন্তু সমস্যা। আমরা অলরেডি আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি যে আমরা আরটিপিসিআর, যেখান থেকে আমরা এই লোডগুলো বের করতে পারছি, অনেক কষ্ট করে বের করতে হয়, ওখানে আমাদের একজন চিকিৎসক আছেন যিনি সারা রাত্রি ধরে বসে বসে এই কাজগুলো করে ভোরের দিকে আমাদের পাঠান। আবারও বলছি, দয়া করে আপনারা কিন্তু এটাকে অত ছেলেখেলাভাবে নেবেন না। আপনারা দেখেছেন যে আমাদের ইনিশিয়ালি আমাদের অ্যাসিমটমেটিক কেস বেশি হচ্ছিল। কিছুদিনের মধ্যে আমরা যখন টের পেয়েছিলাম তখনই বলেছিলাম যে সিমটমেটিক কেস কিন্তু বাড়বে, এবারে আপনারা সাবধান হন। এখন যেটা মনে হচ্ছে, যেটা সিমটমেটিক কেস যেগুলো ইরিভার্সিবল হয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখেছেন বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের আগে ডেথ একদমই ছিল না বললেই চলে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখন কিন্তু একজন দুজন করে কিন্তু মারা যাচ্ছেন। এর পেছনে কারণটাই হচ্ছে যে আমরা খুব গাফিলতি করছি, পেশেন্টরা খুব গাফিলতি করছে, চিকিৎসকরা কতদূর যেতে পারবে, একটা তো সার্টেন লিমিট রয়েছে, সেই জায়গাটাকে আপনাদের দেখতে। जलपाईगुड़ी टूरिज्म ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। आज विश्व पर्यटन दिवस है और इस दिन को पर्यटन व्यवसाय से जुड़े संस्थाओं के द्वारा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जलपाईगुड़ी टूरिज्म ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस दिन को मनाया गया। इस संबंध में वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य आलोक चक्रवर्ती ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा कोई उद्योग प्रभावित हुआ तो वह पर्यटन उद्योग है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में पर्यटन के उद्योग पूरी तरह से चौपट हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे फिर से उद्योग पटरी पर आना शुरू हो चुका है और प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी में उद्योग को वापस लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से होटलों और रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति देने से काफी सहूलियत मिली है। उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन उद्योग अब धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौट आएगा और बेरोजगारों को फिर से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। সবাই কোয়ারিজ করছে, যেমন আন্দামান খুলে গেছে, হিমাচল খুলে গেছে, তারপর সিমলা খুলে গেছে, ডুয়ার্স খুলে গেছে,
মাদারিহাট এই জায়গাগুলো, বক্সা চলছে, পাহাড়, এবং আপনারা জানেন যে যেগুলো হোমস্টেগুলো আছে সেই হোমস্টেগুলো পর্যন্ত আজকে কিন্তু আশায় বুক বেঁধেছে এবং তারা কিন্তু প্রপার গাইডলাইন মেনেই কাজ করছে। মানে আপনাদের মাধ্যমে আমরা এটুকু বোঝাতে চাইছি যে আজকে বিশ্ব পর্যটন দিবসে ট্যুরিস্টদেরকে বলবো, পর্যটকদের বলবো, আপনারা নিশ্চিন্তে নিরাপদে বিভিন্ন ট্যুর অপারেটরের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা যারা আছি এখানে, যেমন তরাই ডুয়ার্স ট্যুর অপারেটর, যেমন আমাদের সুব্রতদার টেম্পল টাইগার, তারপরে আমাদের বাতায়ন কি নাম তোমার, জান ট্রাভেলস, হ্যাঁ, পর্যটক উত্তর বাংলা, সবাই মিলে আমরা একত্রিত ভাবে আমরা সার্বিকভাবে মানুষের নিরাপত্তা দিতে আমরা প্রস্তুত। আপনার নাম আর পরিচয়? অলোক চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার। আমরা জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ইনডোরে আমরা একটা সবাই মিলে মিলিত হয়ে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। বিগত 10 বছর ধরে আমরা এই অনুষ্ঠান প্রত্যেক বছর আমরা পালন করি এবং সেই সময় আমরা বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরিজমকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, বিশেষ করে ডুয়ার্স এবং তরাই এলাকার এই পর্যটন শিল্পটাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরবার জন্য আমরা এই 10 বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। এটা তো মানে চাইছেই, আমি বললাম যে তারা হাত ছেড়ে বাঁচতে চাইছে, যে একটু খোলামেলা আকাশের নিচে তারা একটু পরিবার পরিজনকে নিয়ে নিরাপদে ঘুরতে চাইছে। আমরা তাদেরকে বিশ্বাস জোগাতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা তাদেরকে আপনাদের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে, আমরা সাংবাদিক এই সংগঠনগুলোর মাধ্যমে আমরা জানাতে চাইছি যে আপনারা আসুন, নিশ্চিন্তে আসুন, আমরা প্রপার গাইডলাইন মেনে আপনাদের ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা করব। আপনারা নিশ্চিন্তে স্বাস্থ্যসম্মত, বিধিসম্মতভাবে আপনাদের ঘুরিয়ে আমরা এই ব্যবসাটাকে পুনরুজ্জীবিত করার এই জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই কাজটা করবে। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आई कोरोना वायरस के 88,600 नए मामले, 1,124 मरीजों की हुई मौतें। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 59 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या भी 49 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के मामलों में बेशक हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी भारी वृद्धि देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 88,600 नए मामले सामने आए। वहीं 1,124 लोगों की इस खतरनाक वायरस के कारण मौत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 59,92,533 हो गई है। देश में एक बार फिर संक्रमितों से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। रोजाना वायरस के कारण 1,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है। लगातार भारी बारिश के कारण कालियागंज में उत्पन्न हुए बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जल निकालने का काम जारी। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न निम्न दबाव के कारण उत्तर बंगाल में मंगलवार से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। इसके कारण उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। शहर के कई वार्डों में जल जम गया है, जिससे लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुसने से करीब 36 परिवारों को नगर पालिका के द्वारा ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही कुछ लोग लीचूतला प्राइमरी स्कूल में शरण लिए हैं। इन लोगों को रायगंज नगर पालिका के द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हालांकि रविवार को बारिश थोड़ी कम हुई है। इसके बाद कालियागंज नगर पालिका के चेयरमैन कार्तिक पाल ने लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न है। आज बारिश थोड़ी कम होते ही जल निकासी का काम शुरू कर दिया गया है। कई इलाकों में जेसीबी मशीन से जल निकालने का काम किया जा रहा है। साथ ही समुक्तला के परिपुकुर और गुप्तापाड़ा इलाके में सड़कों को काट कर जल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को हर प्रकार से राहत पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। জল কিছুটা কমে গিয়েছিল, আবার এই 3-4 দিনে মুষলধার বৃষ্টিতে কালিয়াগঞ্জের বেশিরভাগ ওয়ার্ডে জলমগ্ন রয়েছে। তার মধ্যে কিছু কিছু ওয়ার্ডের পরিস্থিতি খুব খারাপ। তাই জন্য আমরা কোথাও কাঁচা ড্রেন কেটে দিচ্ছি, কোথাও যদি রাস্তা কেটে জল বের করতে হয় সেই চেষ্টা করছি। মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে, সেটাও আমরা করছি, কারণ আমাদের এই পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থাকতে হবে। রাস্তা যেরকম ধরুন আমাদের এই এখন 7 নম্বর আর 14 নম্বর ওয়ার্ডে বর্ডারে কাটা হচ্ছে, সকালের দিকে 11 নম্বর ওয়ার্ডে হয়েছে, 17 নম্বর ওয়ার্ডে হচ্ছে। যেখানে যেখানে দরকার কেটে আমরা হিম পাইপ বসে জলটা তাড়াতাড়ি যাতে কমানো যায়, মানুষের যাতে অসুবিধা নয় সেই চেষ্টা আমরা। আপনার সাথে কে আছে? কে কে আছে? আমার
আমার সাথে এখন তো 7 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর অনিন্দ্য গুপ্ত রয়েছে, এখানকার সাধারণ মানুষ রয়েছে, পৌরসভার সাফাই বিভাগের যারা সুপারভাইজার কর্মী সবাই রয়েছে। दुनिया भर में करीब 10 लाख मौतों के साथ दुनिया भर में कुल संक्रमितों की संख्या 3,27,00,000 पहुंच चुकी है। 2.26 करोड़ लोग हुए कोरोना वायरस से ठीक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,27,00,000 को भी पार कर गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 9 लाख से भी ज्यादा हो गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,27,40,134 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 9,92,000 है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा 2,26,15,494 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। दार्जिलिंग के सांसद रह चुके पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह नहीं रहे 82 साल की उम्र में। हुआ निधन। अटल सरकार में विदेश, रक्षा और वित्त तीनों पोर्टफोलियो को संभाला था। दार्जिलिंग जिले के पूर्व सांसद और अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का रविवार सुबह 6:55 पर निधन हो गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 25 जून को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, यानी अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। राजनीति में आने से पहले जसवंत सिंह सेना में कार्यरत थे। वे मेजर के पद से रिटायर हुए थे। सरकार में 3 अहम विभाग वित्त, रक्षा, विदेश संभालने वाले जसवंत को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। एक बार उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। 2014 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से नाराज जसवंत ने खुद पार्टी छोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि जसवंत सिंह जी ने हमारे देश की पूरी लगन से सेवा की। पहले सैनिक के रूप में, बाद में राजनीति में उनका लंबा जुड़ाव रहा। अटल जी की सरकार में उन्होंने बेहद अहम पोर्टफोलियो संभाले। वित्त, रक्षा और विदेश मामलों में उन्होंने मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूँ। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज, सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, सामान्य परिस्थितियों की ओर लौटते हुए जटराज प्ले, ओएटी, सिनेमा, म्यूजिकल और डांस कार्यक्रम और मैजिक शो को 1 अक्टूबर से 50 या इससे कम लोगों के साथ खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा और अन्य प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। राज्य सरकार ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों, टीएमसी सांसद देव, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और अन्य समूहों द्वारा लगातार किए जा रहे सिनेमाघरों को खोलने के निवेदन के बाद यह फैसला लिया है। उनका कहना था कि सिनेमाघरों व अन्य मनोरंजन क्षेत्रों के बंद होने से कारोबारियों व कर्मचारियों को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 3181 नए मामले सामने, 56 लोगों की हुई मौत। राज्य में अब तक 4721 लोगों की हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण मौतें। पश्चिम बंगाल में शनिवार को एक बार फिर कोरोना वायरस के 3000 से ज्यादा यानी 3181 नए मामले सामने आए और 56 लोगों की मौतें हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,44,240 हो गई है, जिसमें से 25,544 एक्टिव केसेज है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,721 पहुंच चुकी है। राज्य के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,955 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए। राज्य में ठीक होने वालों की दर 87.6% है। वर्तमान में 25,544 मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य में शुक्रवार से 43,285 नमूनों की टेस्टिंग की गई। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, नए किसान बिल से किसानों को फायदा होगा। उन्हें जहां अच्छे दाम मिलेंगे वहीं फल सब्जियां बेच सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 69वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान कोरोना संकट के बीच सावधानियां रखने, बच्चों का ख्याल रखने और किसान बिलों पर उनका फोकस रहा। उन्होंने भरोसा दिया कि नए किसान बिलों से किसानों को फायदा ही होगा। उन्हें जहां ज्यादा कीमत मिलेगी, अपनी फसल और फल वहीं बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इशारों में चीन और पाकिस्तान को हिदायत भी दे दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लिखा खत, संविधान के दायरे में रहने की दी नसीहत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें संविधान के दायरे में रहना चाहिए। धनखड़ द्वारा कानून एवं व्यवस्था को लेकर राज्य के पुलिस प्रमुख को लिखे गए पत्र के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने क्षोभ व्यक्त करते हुए बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लिखा 9 पृष्ठों का पत्र में कहा है कि राज्यपाल की ओर से लगाए गए आरोपों में पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ अपुष्ट निर्णय और कटाक्ष शामिल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं आपके पत्र और पुलिस महानिदेशक को संबंधित टिप्पणी को पढ़ने के बाद बेहद उदास और दुखी हुई, जिससे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था। साथ ही इस बारे में आपके ट्विटर पोस्ट में देखकर भी दुख हुआ। बनर्जी ने लिखा, अनुच्छेद 163 के अनुसार आपको अपने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है, जो हमारे लिए लोकतंत्र का सार है। कृषि बिलों पर एनडीए में टूट, अकाली दल ने एनडीए का 22 साल का साथ छोड़ा। हरसिमरत के इस्तीफे के 9 दिन बाद पार्टी गठबंधन से हुई अलग। कृषि बिलों की वजह से एनडीए में फूट पड़ गई है। शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गया है। 9 दिन पहले हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अकाली दल ने लोकसभा और राज्यसभा में इन बिलों का विरोध किया था। भाजपा और अकाली दल पिछले 22 साल से साथ रहे थे। कृषि बिलों के विरोध सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। यहाँ किसान पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के सभी जिलों में किसान सड़कों पर और रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस, अकाली दल, आप, लोक इंसाफ पार्टी और भाजपा का इनको समर्थन मिल रहा है। केकेआर ने हैदराबाद को हराया। आज राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल के 13वें सीजन के 8वें मुकाबले में विपक्षी टीम को कम रन पर रोकने और फिर उसे छोटे से टारगेट को पाने के लिए बैट और बॉल के बीच जद्दोजहद का रोमांच देखने को मिला। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने सीजन का सबसे छोटा 143 रन का टारगेट सेट किया था। इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18वें ओवर में 3 विकेट गंवाकर 144 रन बनाते हुए मैच को जीत लिया। दूसरी तरफ आज आईपीएल के 13वें सीजन का 9वां मैच राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज शारजाह में खेला जाना है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।